अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एक शोहर अपनी बीवी को क्यों कत्ल करता है, बीवी को कत्ल करने की वजह क्या है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। अपनी बीवी को ही कत्ल करने वाला मुलजिम जो है वो इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की हिरासत में इसने क्या कुछ कहा और अब हम इनसे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या वजह थी कि अपनी बीवी को ही इसने कत्ल कर दिया। हाँ जी, की नाम है तेरा? मेरा नाम ताहिर मुनीर, हाजी ताहिर मुनीर। ताहिर मुनीर नाम है। हाँ तो की काम करना मैं रैगजिम का है? रैगजिम शालमी। अच्छा, शालमी काम करना है। हाँ जी। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 656 नीलम ब्लॉक। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? साढ़े 98 98 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 बच्चे, ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? एक बेटा 2 बेटी। ਇੱਕ ਬੇਟਾ 2 ਬੇਟੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? नहीं, ਗੈਰ ਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਐਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ? हज करन गए हैं। ਅੱਛਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ? बीवी नाल लैके मैं गया हज करन। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਾਂਢੂ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੱਸ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਅਨਵਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੋਤਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਸਮ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਟੈਚ ਸਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ 10 ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਤਰਦਿਆਂ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 17 ਦੀ ਜੀ, 17-18 ਦੀ। 2017 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 2023। 23। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਜਫ ਕਲੋਨੀ ਫਲੈਟ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ 6-8 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ
ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੰਗੀ ਅਮਰ ਸੱਧੂ ਕਮਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਸਿਲਮਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ। बीवी तेरी ने? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੰਦਸ਼ ਜੋ ਲਾਤੀ। ठीक। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ 7 ਵਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ। ठीक है। ਮੈਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, 150 200 ਕਿ ਮਸਾਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਜਾ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਚਿੰਚੀ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 15,000 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯੂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਲਮੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, 6 5 7 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ। अच्छा, जिस दिन कत्ल किया उस दिन की वकूआ होया? लड़ाई हुई सी पहले या मना कर रहा सा कि काम ना कर? नहीं मनाया, मैं नहीं मनी। उस तो बाद मैनू गुस्सा चढ़िया, मैं बस मेरे को बर्दाश्त नहीं होया। तो किस तरह मारिया उन्होंने? बहुत छुरी पई सी ते कार दे विच घर के नाल लेके गया सर? नहीं कार विच। कार ही छुरी ते हाथे की होया? हत्थ छुरी का दस्ता बचा। हाथी छुरी का दस्ता बचा। तो जो तू मारिया अपनी बीवी नूं ते कार बचे नहीं गए सन? बच्चियां तो उन्होंने छुड़ाया नहीं, बचाया नहीं वो मां नूं? ਉਹ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ, ਮੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। किन्नी उम्र तेरी इस टाइम? ਮੇਰੀ 62 62 है। तो बीवी दी किन्नी सी? 55। ਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ। 2017 ਤੇ 55 ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ। ਕਿੰਨਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? 5-7 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ 2 ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ 3 ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ? ਮਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ, Less। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਮੈਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਨਵਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ? ਜੀ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਲੇਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰੇ ਨੇ 7-8 ਟੱਕ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ? ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये था जी वो मुलजिम जो अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद अब इस बात पे रो रहा है कि उसको अपनी जवान बेटियों का बड़ा दुख है और उनको याद करके ये रो भी रहा है। ये घर से ना 1-2 दफ़ा पहले भी उसे तलाक दे चुका है, लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकल जाता था, फिर आकर सुलह कर लेता था। ठीक है। बच्चे जो हैं उनसे भी सारी तस्दीक की है, वो इसके साथ नहीं है, वो अपनी वालदा के साथ है। जब ये हुआ तो इसका बड़ा बच्चा जो था ना वो मौके पे आ गया था। ठीक है। हाँ लेकिन ये ना फिर उधर चोरी आला कत्ल फेंक कर दौड़ लगा गया। ठीक है। अच्छा ये आला कत्ल जो है वहाँ पे फेंक के और चला गया। जी जी। और अपनी बीवी की किरदार के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे कोई इसके पास कोई सबूत नहीं है और आसपास की तस्दीक है, कोई इस किस्म का कोई सबूत नहीं। अच्छा आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहती है कि ये नशे में मुब्तला रहने वाला शख्स था और घरेलू नाचाकी थी। जी जी। तलाक भी पहले दे चुका हुआ था, इस वजह से कत्ल किया? जी इस वजह। अच्छा इकबाल साहब ये बताएं कि जो एक ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि वो कहीं पे काम करती थी, कोई मेहनत मजदूरी करती थी, इसकी मर्ज़ी के बगैर करती थी, ये बात क्या है इसका? वो इससे बेटे से भी तस्दीक है, इसका बेटा भी काम करता है, वो भी बच्चों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करती थी। ये तो पैसे देते निकल जाता, कहीं दिन नहीं थी आता। अच्छा उसके बाद ये आता था तो बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता था, पैसे तो देता नहीं था, इसलिए वो अपनी मेहनत करती थी। तो इकबाल साहब ये जो रोने का ड्रामा कर सब रहा है, ये सब ड्रामा कर रहा है। सब ड्रामा कर रहा है, इसका मतलब है ये इसने जानबूझ के अपनी बीवी को हाँ जी। बिला वजह कत्ल किया। मौके से फरार भी हो गया था। हमारे एसपी साहबान ने, हमारे एएसपी साहबान उन्होंने जो ना उसी वक्त टीमें, हमारी भी एक टीम बनी थी, हम टीमें तकसीम करके ना इसकी जो थी लाहौर बाहर जाने वाली जो जगह थी उन्होंने नाकाबंदी उधर कर दी थी। ठीक है। हाँ लारी ऑटो पे इधर आसे पास इधर। ठीक है। लेकिन ये इसकी लोकेशन लाहौर की आ रही थी। मज़ीद अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो औरत जिसको पेट में स्टैब किया गया था छुरी के साथ, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शेख ज़ायद हॉस्पिटल में दम तोड़ जाती है। ठीक है। और लीगल प्रोसीडिंग्स हमारी तमाम वो दैट दे वर गोइंग ऑन, बट हमारे लिए मेन टारगेट ये था कि जो उसका मुलजिम, जो उसका खामंद है, वो उसको एज सुन एज़ पॉसिबल अरेस्ट किया जाए। उसने होशियारी का मुजाहरा करते हुए एज़ यूजुअल जिस तरह मुलजिमान करते हैं, उसने अपना फ़ोन ऑफ़ कर दिया। 50 साल का ताहिर, उसके जो भी पॉसिबल जगहें थी रिलेटिव्स की तरफ और जहाँ वो दोस्त यार है, जो उसकी फैमिली की तरफ से, उसके बच्चों की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही थी, हमने तमाम को चेक किया। ही वॉज़ नॉट देयर। उसको टेक्निकली हमने उसके CDRs लेकर और उसके मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए फाइनली हमने उसको 24 घंटे के अंदर अंदर लाहौर से ही अरेस्ट कर लिया। और ये हमारा मेन टारगेट था। और इनटॉलरेंस वाली जो आपने बात की, बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त और इनटॉलरेंस या इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाना किसी घर के अंदर नाचाकी के ऊपर इतना बढ़ गया है कि उसने अपनी बीवी की ही, अपने 3 बच्चों की माँ की ही जान ले ली। और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा सदमे में थे। उसका बेटा ख़ुद ही डिसाइड किया कि मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ अपनी माँ के कत्ल का मुद्दई ख़ुद बनूंगा। हालांकि पुलिस इस तरफ इंक्लाइंड थी कि मकतूला का भाई मुद्दई बने,
बट मकतूला का बेटा जो कातिल का भी बेटा है उसी ने ही कहा कि नहीं आए, उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि मैं ही मुद्दई बनूंगा। तो वी रजिस्टर्ड द FIR इंस्टेंटली, लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ वेरी काइंड, थोड़ी सी एफर्ट के साथ हमने विदिन 24 आवर्स एक्यूज़ को अरेस्ट भी कर लिया। मुल्जिम ताहिर की आपने बात सुनी, किस तरह से खातून अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद अब वो रोने का और बेटियों के दुख में मुब्तला होने का एक ड्रामा कर रहा था। आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, इकबाल साहब, इनसे बात करते हैं कि मुल्जिम से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो वो इल्ज़ाम लगाता है उसका सच होना भी साबित होता है। इकबाल साहब, ये जो मुल्ज़म है ये अपनी बीवी की किरदार कशी कर रहा है और कह रहा है कि वो करैक्टरलेस थी, 55 साल उसकी उम्र थी, क्या ये चीज़ें मुमकिन है? क्या इन्वेस्टिगेशन आपकी करती है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। असल में ये नशा वगैरह करता है, गोलियाँ वगैरह भी खाता है और भी नशा करता है, नस्वार वगैरह भी। ये घर से ना 1-2 दफ़ा पहले भी उसे तलाक दे चुका है, लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकल जाता था, फिर आकर सुलह कर लेता था। ठीक है। बच्चे जो हैं उनसे भी सारी तस्दीक की है, वो इसके साथ नहीं है, वो अपनी वालदा के साथ है। जब ये हुआ तो इसका बड़ा बच्चा जो था ना वो मौके पे आ गया था। ठीक है। हाँ, लेकिन ये ना फिर उधर चोरी आला कत्ल फेंक कर दौड़ लगा गया। ठीक है। अच्छा, ये आला कत्ल जो है वो वहाँ पे फेंक के और चला गया। जी जी। और अपनी बीवी की किरदार के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे कोई इसके पास कोई सबूत नहीं है और आसपास से तस्दीक की कोई इस किस्म का कोई सबूत नहीं। अच्छा, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहती है कि ये नशे में मुब्तला रहने वाला शख्स था और घरेलू नाचाकी थी, तलाक भी पहले दे चुका हुआ था, इस वजह से कत्ल किया। जी, इस वजह। अच्छा, इकबाल साहब ये बताएं कि जो एक ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि वो कहीं पे काम करती थी, वो मेहनत मजदूरी करती थी, इसकी मर्ज़ी के बगैर करती थी, ये बात क्या है इसका? वो इससे बेटे से भी तस्दीक है, इसका बेटा भी काम करता है, वो भी बच्चों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करती थी। ये तो पैसे देते निकल जाता, कई दिन नहीं थी आता। अच्छा। उसके बाद ये आता था तो बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता था, पैसे तो देता नहीं था, इसलिए वो अपनी मेहनत करती थी। तो इकबाल साहब, ये जो रोने का ड्रामा कर रहा है, ये सब ड्रामा कर रहा है, सब ड्रामा कर रहा है, इसका मतलब है ये इसने जानबूझ के अपनी बीवी को बिला वजह कत्ल किया। मौके से फरार भी हो गया था। हमारे SP साहबान ने, हमारे ASP साहबान, उन्होंने जो ना उसी वक्त टीमें, हमारी भी एक टीम बनी थी, हम टीमें तकसीम करके ना इसकी जो थी लाहौर बाहर जाने वाली जो जगह थी उन्होंने नाकाबंदी उधर कर दी थी। ठीक है। हाँ, लारी ऑटो पे इधर आसे पास इधर। ठीक है। लेकिन ये इसकी लोकेशन लाहौर की आ रही थी। ठीक है। उसके बाद सुबह इसके लोकेशन ली तो इसकी लोकेशन लाहौर की आ रही थी। ठीक है। इसके बेटे से फ़ोन करवाया इसे। ठीक है। उसने कहा कि तुम आ जाओ, वो मैंने सारा मामला हैंडल कर लिया है। ठीक है। हमने नाकाबंदी तो की हुई थी, जब आया तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया, रात दरबार पर सोया हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक बात साहब ये बताएं कि ये जो एक आपने ज़ख्म दिखा रहा था जिस्म पे कि मैंने खुद को भी मारने की कोशिश की है बीवी को कत्ल नहीं, ये जब वो इसका बेटा छुड़ा रहा था ना उसे। अच्छा। हाँ, उस वक्त इसे लगा घटकुश है, इसने कोई खुदकुशी वगैरह की कोशिश की। अच्छा, इकबाल साहब, इसके हाथ पे भी लगा, इधर भी लगा। अच्छा, इकबाल साहब, इसका जो बेटा है जो इस मुकदमे में मुद्दई है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को ज़्यादा ना उछाला जाए क्योंकि उनको तकलीफ़ भी है। बाप उल्टे सीधे माँ के ऊपर, मरने वाली माँ के ऊपर उनके इल्ज़ाम लगा रहा है, तो वो तो बड़े शर्मिंदा होंगे, बड़े मायूस होंगे इसके रवैये से। नहीं, वो तो कहते हैं इसे सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, सज़ा होनी चाहिए। ये थे जी आईओ इकबाल साहब जो इस मुकदमे की सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इकबाल साहब के बकौल के मुल्ज़िम, ये जो कुछ आपने हमसे बात करते हुए देखा और महसूस किया, ये सब कुछ ड्रामा था। रोने का भी ड्रामा करता है और अपनी बीवी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बीवी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं पे काम करती थी, इसके बच्चे भी काम करते थे और ख़ुद ये मंशियात का भी इस्तेमाल करता था और कई रोज़ घर पे भी नहीं आता था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि ये मुतअद्दिद बार अपनी बीवी को तलाक भी दे चुका था, फिर उससे आके मुतालबा करता था, राब्ता करता था, जिन पे इनका झगड़ा रहता था।
इकबाल टोन के इलाके में एक शोहर अपनी बीवी को कत्ल करता है और मौके से फरार हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, तमाम शवाहिद इकट्ठे करती है और ऑपरेशन विंग जो है मुलजिम को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लेती है। एसपी इकबाल टोन ऑपरेशन उस्मान टीपू हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये वाकया था क्या और मुलजिम को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और क्या वजह थी कि उसने अपनी बीवी को ही कत्ल कर दिया। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। उस्मान साहब ये बताइएगा कि इकबाल टाउन के इलाके में एक खातून जो है वो कत्ल होती है और कोई और नहीं, उसका कातिल उसका शोहर होता है। ऑपरेशन विंग वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, रिस्पॉन्ड करते हैं आप भी, मुलजिम मौके से फ़रार हो जाता है। वाक़या क्या था? 45 साल नाहिद बीबी का कत्ल बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। 15 की हमें कॉल रिसीव होती है। हमें कॉल इनिशियली ये है कि एक शोहर ने अपनी बीवी को शदीद ज़ख्मी किया है और वो खातून शदीद ज़ख्मी हालत में उसको शेख ज़ायद हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। तो वी ऑल रिस्पॉन्डेड इन टाइम। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉल थी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन था और वो भी बिटवीन मियाँ बीवी के दरमियान था। बट मज़ीद अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो औरत जिसको पेट में स्टैब किया गया था छुरी के साथ, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शेख ज़ायद हॉस्पिटल में दम तोड़ जाती है। ठीक है। और लीगल प्रोसीडिंग्स हमारी तमाम वो दैट दे वर गोइंग ऑन, बट हमारे लिए मेन टारगेट ये था कि जो उसका मुलजिम, जो उसका खामंद है, वो उसको एज सून एज़ पॉसिबल अरेस्ट किया जाए। उसने होशियारी का मुजाहरा करते हुए एज़ यूजुअल जिस तरह मुलजिमान करते हैं, उसने अपना फ़ोन ऑफ़ कर दिया। 50 साल का ताहिर, उसके जो भी पॉसिबल जगहें थी रिलेटिव्स की तरफ और जहाँ वो दोस्त यार है, जो उसकी फैमिली की तरफ से, उसके बच्चों की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही थी, हमने तमाम को चेक किया। ही वाज नॉट देयर। उसको टेक्निकली हमने उसके CDRs लेकर और उसके मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए फाइनली हमने उसको 24 घंटे के अंदर अंदर लाहौर से ही अरेस्ट कर लिया और ये हमारा मेन टारगेट था। और इनटॉलरेंस वाली जो आपने बात की, बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त और इनटॉलरेंस या इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाना किसी घर के अंदर नाचाकी के ऊपर इतना बढ़ गया है कि उसने अपनी बीवी की ही, अपने 3 बच्चों की माँ की ही जान ले ली और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा सदमे में थे। उसका बेटा ख़ुद ही डिसाइड किया कि मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ अपनी माँ के कत्ल का मुद्दई ख़ुद बनूंगा। हालांकि पुलिस इस तरफ इंक्लाइन थी कि मकतूला का भाई मुद्दई बने, बट मकतूला का बेटा जो कातिल का भी बेटा है, उसी ने ही कहा कि नहीं, उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि मैं ही मुद्दई बनूंगा। तो वी रजिस्टर्ड द FIR इंस्टेंटली, लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ वेरी काइंड, थोड़ी सी एफर्ट के साथ हमने विदिन 24 आवर्स एक्यूज़ को अरेस्ट भी कर लिया। अच्छा उस्मान साहब, होता ये है कि जब कोई इस तरह का वक़ूआ, इस तरह का इंसिडेंट होता है तो यकीनन ऑपरेशन विंग जो है वो जाए वक़ूआ पर पहुँच के, और अगर खुदा ना खास्ता कोई डेड बॉडी है तो उसको मुर्दा खाने पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है। तो उसके बाद किया ये जाता है कि इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले सारी चीज़ें कर दी जाती हैं कि अब मुलजिम जाने और इन्वेस्टिगेशन विंग जाने। बहुत कम होता है कि ऑपरेशन विंग जो है अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए मुलजिम को गिरफ़्तार करे। यकीनन ये इसी तरह से आपने भी किया, आपकी टीम ने भी उसको गिरफ़्तार किया। तो इसमें ऐसी क्या बात थी, जिस तरह से आपने बताया कि अदम बर्दाश्त थी, ज़ाहिर है सारे हक़ाइक़ जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे, क्या कुछ ऐसा था कि उसने बीवी को जो है वो कत्ल किया, इनकी घरेलू नाचाकी थी और ये पहले भी इनका कोई ऐसे मामला चलता रहता था, और आजकल ये है कि अदम बर्दाश्त और दूसरा मंशियात का इस्तेमाल, तो इनमें से भी कोई चीज़ें सामने आई? जी बिल्कुल। पैटी इशू के ऊपर उसके बेटी भी एक घर में मौजूद थी। घर की घरेलू नाचाकी और पैटी इशू के ऊपर तकरार का इस हद तक बढ़ जाना कि वापस में ज़दोकोब हो गए और उसने गुस्से में आके बीवी को पेट में छुरी दे मारी और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस अदम बर्दाश्त ही था जो उसकी बीवी की, उसने अपनी जान ले ली। और इसके अंदर एक काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि उसकी बेटी और बच्चे घर पे मौजूद हैं, उनके सामने वो अपनी बीवी की और उन बच्चों की माँ की जान ले रहा है या इस तरह उनको ज़्यादा कोप कर रहा है, जो एक मुआशरे के अंदर अगली जनरेशन के अंदर भी बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं।
तो ऑपरेशंस डिवीजन ने इन टाइम रिस्पॉन्ड किया, इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी किया, और दोनों विंग्स अगर अपना अपना काम और इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करें तो अल्हम्दुलिल्लाह काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो मुलजिम का गिरफ्तार हो जाना इस चीज़ का सबूत है कि वी रिस्पॉन्डेड इन टाइम। उस्मान साहब, FIR दर्ज करना ऑपरेशन विंग की जिम्मेदारी होती है, इन्वेस्टिगेशन उसके बाद स्टार्ट होती है। जिस तरह से आपने बताया कि आप ये चाह रहे थे कि उसका मकतूला का भाई या उसका कोई ब्लड रिलेशन वाला मुद्दई बन जाता, मतलब इस पहलू पे क्यों गौर किया गया कि बेटा जो है वो ना मुद्दई बने? बेटा अपनी माँ को तो खो बैठा और बाप भी उसका जेल में अब चला जाएगा, और फिर वो उसके लिए भी कल को अगर उसको कोई इन्फ्लुएंस हो के या वो उसके बाप के ऊपर तरस खा के अगर उससे सुलह भी कर ले तो फिर केस डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए पुलिस या हम लोग मकतूला के कोई भाई को हम मुद्दई बनाना चाह रहे थे, बट फैमिली ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि हम उसके बेटे को ही, हम जो मकतूला का बेटा उसको ही हम मुद्दई बनाएंगे। और एक और भी काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो उसका जो वालिद है बच्चे का, जो कातिल है, उसने उसका नशे का भी थोड़ा सा एडिक्ट था। अच्छा। और उस बीवी के ऊपर वो थोड़ा सा जो साइकोपैथ भी जिस तरह हो जाते हैं, थोड़ा सा ज़हनी डिप्रेशन का शिकार भी इस हैबिट के साथ लोग हो जाते हैं, उसके साथ और घर के अंदर नाचाकी भी थी। ये सारे एलिमेंट, सारे फैक्टर्स ने एक्यूमुलेट होके ये सारा इंसिडेंट करवाया। ये थे जी SP इकबाल टाउन ऑपरेशन उस्मान टीपू साहब, जिन्होंने बताया कि मुलजिम को गिरफ़्तार करना उनके लिए बड़ा अहम था। जब ये वाक़या पेश आता है और उसके बाद फौरी तौर पे टीमें तश्कील दी जाती हैं जिसकी सरबराही ये ख़ुद करते हैं, और 24 घंटे के दौरान ही मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन इस बारे में मज़ीद बता सकेगी कि कत्ल करने की वजूहात क्या हैं और कितने अरसे से इनके दरमियान घरेलू नाचाकी चल रही थी, वजह क्या थी कि इस हद तक वो मुलजिम आया कि उसने अपनी ही बीवी की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। अपने से कहानियाँ घड़ना शुरू हो जाना, बिला वजह का गुस्सा आना, एग्रेशन इतना ज़्यादा होना कि उसके ऊपर आप कंट्रोल ना कर सको, ये वाली अलामत ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग ले रहे हैं, लेकिन यूजुअली ये वाली अलामत होती हैं। सो उस पर शक करना भी एक बहुत बड़ा इसका जो है एक सिम्टम जो है वो होता है कि लोग शक करना शुरू कर देते हैं जब वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है खुद से, क्योंकि कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। इस स्टोरी में भी जिस तरह हमें बताया कि वो ड्रग्स ले रहा है, तो उसके असर पे ये पॉसिबिलिटी है कि वो मर्द जो है वो अपनी बीवी के ऊपर शक कर रहा है उसकी वजह से, एंड देन उसको कहीं कोई मौका मिल गया है मे बी, क्योंकि वो ट्रिगर हो गया है कहीं ना कहीं से उसने, बेशक वो, क्योंकि जब आप ड्रग ले रहे होते हो तो ड्रग लेते लेते आपकी हालत ये होती है कि आप जनरली भी किसी को बात करते हुए देख लो जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, काम की वजह से बात हो सकती है, मगर जो वो बंदा जिसकी नीयत में या जिसकी तबीयत में शक आ जाता है उसको जनरल बात करना भी जो है वो एक गलत ही नज़र आ रहा होता है। वो कहीं अगर उसने किसी से बात किया तो उसने उसको बुनियाद बना लिया, क्योंकि उसका माइंड जो है वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, ड्रग ने उसको कहीं ना कहीं चेंज कर दिया हुआ उसके दिमाग को, इसलिए वो रियलिटी को उस तरह से नहीं देख सकता। एक तो ये रीज़न है। दूसरी ये रीज़न है कि समटाइम्स ड्रग लेने की वजह से लोगों में डेलूजन्स जो हैं वो हो जाते हैं। डेलूजन्स का मतलब जो है वो ये है कि वो फॉल्स बिलीव होते हैं, यानी गलत एतकादात होते हैं जिसमें शक करना एक चीज़ जो है वो हो सकती है, यानी मेरी बीवी या शोहर किसी और के साथ जो है वो ताल्लुक़ में है, ये शक होना जो है वो भी हो सकता है, डेलूजन्स जो हैं वो हो सकते हैं। मुलजिम क्या कहता है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कहती है, ये सब कुछ आपने सुना। इस तरह के मुलजमान जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, तिब्बी माहिरीन की राय क्या है कि इस तरह के मुलजमान जो मंशियात के आदी होते हैं, इतने करीबी रिश्ते को इस अजियत के साथ कत्ल कर देते हैं। ये सब कुछ जानते हैं तिब्बी माहिरीन की ज़ुबानी। तो
पे ये चीज़ें ऑल ऑफ सडन सामने नहीं आती कि हम कहें कि जी एक ही दिन गुजरा और उसके ऊपर शोहर जो है वो शक करना शुरू हो गया। उसके पीछे भी एक पूरी जो है वो एक सीरीज़ होती है इस तरह की इंसिडेंट्स और इवेंट्स की, जिसमें टाइम टू टाइम में भी कभी इतना सीरियसली ना कहा हो मगर पॉइंट आउट ज़रूर की जाती हैं चीज़ें कि ये इस तरह से, ये इस तरह से, यानी उस बंदे को पहले से लग रहा होता कहीं ना कहीं। समटाइम्स इन चीज़ों की हकीकत भी होती है और समटाइम्स हकीकत नहीं भी होती। जिस तरह से कि इस स्टोरी में हमें पता है ऑलरेडी कि जो कि एक्यूज़ है उसका ड्रग की हिस्ट्री जो है वो है। ड्रग अब एक ऐसी चीज़ है जिसमें यूजुअली जो है अगर कोई भी बंदा जो है कोई ड्रग ले रहा हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम शक करना, उल्टे सीधे ख्यालात आना, रियलिटी के साथ कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाना, अपने से ही कहानियाँ घड़ना शुरू हो जाना, बिला वजह का गुस्सा आना, एग्रेशन इतना ज़्यादा होना कि उसके ऊपर आप कंट्रोल ना कर सको, ये वाली अलामात ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग ले रहे हैं, लेकिन यूजुअली ये वाली अलामात होती हैं। उसमें शक करना भी एक बहुत बड़ा इसका जो है एक सिम्टम जो है वो होता है कि लोग शक करना शुरू कर देते हैं जब वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है खुद से, क्योंकि कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। इस स्टोरी में भी जिस तरह हमें बताया कि वो ड्रग्स ले रहा है तो उसके असर पे ये पॉसिबिलिटी है कि वो मर्द जो है वो अपनी बीवी के ऊपर शक कर रहा है उसकी वजह से, एंड देन उसको कहीं कोई मौका मिल गया है मे बी, क्योंकि वो ट्रिगर हो गया है कहीं ना कहीं से उसने, बेशक वो, क्योंकि जब आप ड्रग ले रहे होते हो तो ड्रग लेते लेते आपकी हालत ये होती है कि आप जनरली भी किसी को बात करते हुए देख लो जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, काम की वजह से बात हो सकती है, मगर जो वो बंदा जिसकी नीयत में या जिसकी तबीयत में शक आ जाता है उसको जनरल बात करना भी जो है वो एक गलत ही नज़र आ रहा होता है। वो कहीं अगर उसने किसी से बात किया तो उसने उसको बुनियाद बना लिया, क्योंकि उसका माइंड जो है वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, ड्रग ने उसको कहीं ना कहीं चेंज कर दिया हुआ उसके दिमाग को, इसलिए वो रियलिटी को उस तरह से नहीं देख सकता। एक तो ये रीज़न है, दूसरी ये रीज़न है कि समटाइम्स ड्रग लेने की वजह से लोगों में डेलूजन्स जो हैं वो हो जाते हैं। डेलूजन्स का मतलब जो है वो ये है कि वो फॉल्स बिलीव होते हैं, यानी गलत एतकादात होते हैं जिसमें शक करना एक चीज़ जो है वो हो सकती है, यानी मेरी बीवी या शोहर किसी और के साथ जो है वो ताल्लुक़ में है, ये शक होना जो है वो भी हो सकता है, डेलूजन्स जो हैं वो हो सकते हैं। फिर कुछ ज़हनी बीमारियां भी इस तरह की होती हैं जिसमें कि लोग जो हैं उनको शक होना शुरू हो जाता है अपने जो वो उन लोगों के ऊपर ख़ासतौर पर जो उनको बड़े करीबी होते हैं, जिनमें माँ बाप तो नहीं आते लेकिन बहन जिस तरह हो गई, जिस तरह बेटी या फिर जो है वाइफ, उसमें टॉप ऑफ ऑल जो है बात है, यूजुअली उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा शक जो है वो होना शुरू हो जाता है। इस तरह की ज़हनी बीमारियाँ मौजूद हैं जिसके नतीजे में ये चीज़ें हो जाती हैं। बट देन अगेन एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा ब्रॉटअप, यानी हम किस माहौल में हमारा ब्रॉटअप हुआ है, हमारे दोस्त यार किस तरह के हैं। अगर हम वो लोग जो कि एडिक्ट है किसी न किसी ड्रग का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आप उनकी सराउंडिंग्स को देखें, उनकी कंपनी को देखें, उनके फ्रेंड्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे यही सारी स्टोरीज़, लोगों की बातें, फ़लाँ का ये चक्कर चल रहा है, उसका उसके साथ ये बात है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है उस ग्रुप में। बहुत सारी ऐसे डाउट्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि सब लोग जो है वो एक ही तरह के हालात के शिकार होते हैं, सो एक ही जैसी बातें कर रहे होते हैं। जब आप उस माहौल में रहते हैं तो फिर आप नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी में फ़र्क करना जो है वो भूल जाते हैं, यानी सही क्या और गलत क्या वो आपको भूल जाता है। तो आप अपने घर वालों के ऊपर भी उसी तरह से शक करना शुरू कर देते हैं और समटाइम्स मारना भी शुरू कर देते हैं, और कुछ हालात इस तरह के भी हो सकते हैं जिसपे मर्डर हो जाना या इस तरह का कोई भी जानी नुकसान जो है वो किया जा सकता है। शक की बुनियादी वजूहात जो हैं, अगर मैं सबसे ज़रूरी बात ये कहूँ तो बच्चा जो है पैदाइशी तौर पे तो शक नहीं करना शुरू करता, वो तो जब जिस माहौल में रहता है वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो वहाँ से वो चीज़ें लेना शुरू करता है। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में औरतों को या बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो वहाँ से चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। उसके इर्द गिर्द का माहौल जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वही बच्चा अगर किसी एक स्टेज के ऊपर जाके ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो वो जो उसने वायलेंस, शक करना या इस तरह की चीज़ें सीखी हुई होती हैं अपने माहौल से ही, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो आम लोगों से ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसमें ड्रग भी उसको बढ़ा रहा है और उसकी कंपनी भी उसको बढ़ा रही है। शक की बुनियादी वजह जो है वो माहौल है, तरबियत है, और उसके साथ अगर कोई और ड्रग भी इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसको ट्रिगर कर सकता है, और अगर कोई जहनी मरीज़ जो है वो है तो वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। बट प्राइमरीली आपका माहौल जो है वो किस तरह का होता है, वहाँ से चीज़ें ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग जो हैं वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी भी इस तरह की होती है कि शक बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को ट्रस्ट करने की कमी जो है वो बहुत ट्रस्ट करना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
बट देन अगेन ये परवरिश से आता है, ये तरबियत से आता है। सो आपका माहौल बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों में कि आप किस तरह से अपने घर वालों को डील कर रहे हैं और किस तरह से अपने स्पाउस को डील कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन जो है इसको सॉल्व करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर आपको समझ ना आ रही हो कि बेसिकली ये जो शक हो रहा है उसकी क्या वजह जो है वो है, और उसकी बुनियाद पे क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ताल्लुक इफेक्ट होना शुरू होता है। तो कम्युनिकेशन जो है इसका एक मेजर जो है वो रास्ता है कि आपको लग रहा है कि आपका स्पाउस आपके ऊपर शक कर रहा है, आपको अगर कहीं से वाइब्स भी बना रही हैं, उसने अपनी ज़ुबान से भी कहा मगर आपको खुद से ये फ़ील हो रहा है कि शायद इस तरह की कोई चीज़ हो रही है हमारे बीच में, तो बेहतरीन चीज़ जो होती है वो कम्युनिकेशन है। उससे बात करना है उसके ऊपर कि जी मुझे ये फ़ील हो रहा है। ये मत कहें कि आपको ये लग रहा है, बल्कि ये कहें कि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे बीच में हो रही हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो तब ही आप अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकेंगे कि वो ऐसा समझ भी रहा है या नहीं रहा। हो सकता है ये आपके अपने दिमाग की कोई एक ऐसी बात हो। सो बातचीत करना जो है बहुत सारे मामलात को रिजॉल्व कर सकता है और यही कुंजी है चीज़ों को बेहतर करने की। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद के बारे में तिब्बी माहिरीन का क्या कहना था आपने सुना। इस मुकदमे का मुद्दई मुलजिम का सगा बेटा है उस्मान से हमने बारहा राब्ता करने की कोशिश की, उसने हमसे बात भी की। उसका ये कहना था कि उसका बाप और उसकी माँ का कातिल मंशियात का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कैमरे के सामने आकर कुछ भी बात करने से गुरेज़ा है। उसकी वजह यह है कि उसका वालिद उसकी माँ पर इस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाता है जिसको वो कैमरे के सामने आकर जवाब देने से कासिर है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि नशे की लानत जो है वो एक शोहर को इतना संगदिल कर देती है कि वो अपनी बीवी और बच्चों की माँ को भी कत्ल कर देता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।